नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए DNV शो के एक्साइटिंग एपिसोड में। लास्ट एपिसोड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान rivalry and we just got done watching that game and I was totally wrong about it. It wasn't even close and I feel it would have been better if Pakistan boycotted this game. But हाँ, मैच देख के खड़े हुए ऐसे ही आइडिया आया हमारे साथ। द मैन हिमसेल्फ मेगल भाई बैठे हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन देने की काफ़ी लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। मेगल भाई 15+ साल से यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं क्लब लेवल पे, और मुझे भी क्रिकेट से इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। आई नेवर प्लेड लेदर बॉल, तो इन्होंने 1 साल पहले ही मुझे इंट्रोड्यूस किया क्रिकेट से। और क्रिकेट के बारे में आई डोंट हैव टू से, ही हैज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड आई वुड लाइक टू know more about how he sees Team USA, its performance, and maybe if he wants to talk about today's game as well. Megal bhai, floor is yours. Hello every viewers. Namaste. So I am playing a club level cricket in US for more than 15 years now. I believe I started back in 2010 and I have played leather ball cricket, tennis ball cricket, tape ball cricket. I have played for various clubs, various leagues, and currently we are in Georgia and we manage a big club named ACC Gladiators. That's our club, which have more than 50 active members, and we are participating in many different leagues. So I know from the player to managing the team, I know how everything works in US and I have experienced a lot. और फिर मैं सोचता हूँ कि यार बहुत क्रिकेट में US बहुत आगे आ चुका है. But in answer to your question for the today's game, I think there is no rivalry anymore, honestly speaking. True. Pakistan is not that threatening it used to be. If you see the history of 20, 30 years or 40 years or 50 years of Pakistan, when you heard word Pakistan, you will heard what the first thing come in your mind is a lethal pace bowling. Yes. Lethal bowling, swing bowling, right? And अगर आप आज की गेम देखोगे, एक ही फास्टर बॉलर था, Shaheen Shafri. Fahim Ashraf was there, but they more consider him as a batting all-rounder. Fahim Ashraf was there, did not even bowl a single ball. Shaheen Shafri, I guess 2 overs. And 2 overs के बाद उसने कितने runs दिए और पूरा game, both the end. I'm not saying India Pakistan, but from Pakistan point, it was all done by spinners. Yes. Right? Which was we even never thought. And the way Pakistan cricket is going, वो बहुत ही It's sad. There is no rivalry. अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आज की डेट में आज ऑनेस्टली अगर इंडिया हार भी जाता ना, इंडिया डोंट केयर, नाइदर इंडियंस वुड केयर कि भाई इट्स बिकॉज सी अगर हम 10 साल की हिस्ट्री देख ले, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और मे बी विल से फ्रॉम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड्स वेयर इंडिया स्टार्टेड विथ रोहित शर्मा एंड शिखर धवन एंड पाकिस्तान स्टार्टेड विद अ डिफरेंट ओपनर, डिफरेंट टीम्स. इंडिया इवॉल्व अ लॉट. इंडिया ग्रोज अ लॉट from every skills, bowling, batting, fielding, and if I see the Pakistan, somewhere those skills are missing. Pakistan batsmen, Saeed Anwar, Amir Sohail, Shahid Afridi, in 1996, I believe they used to play more faster than these guys. Cricket, more attacking cricket than these guys. So I don't know where it's going, Pakistan cricket, but it's not definitely no competition. From skill set point of view, no competition at all with the Indian team. I'm sorry, they are not a threatening team to anyone anymore. If it might surprise someone on one surprising day, but if you see on a consistent basis, no. So definitely no. And अगर मैं आपको इसी इंडियन टीम के सामने पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखिए और यूएसए का परफॉर्मेंस देखिए, you will see a big difference. USA team was well planned. They executed their plan very well, or USA performed extremely well. See, India definitely played well, but as USA is still new to the international big global level cricket, they will play more, they will get more experience when they play against the big team. But if you notice their performance against India and against Pakistan, USA I believe did extremely well. They give a tough fight. See, today's game was less competitive. India-Pakistan game was less competitive than India-USA game. Yeah. So USA did pretty well.
यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट विद देयर आई विल से डिसिप्लिन बॉलिंग दे ट्रबल बोथ ऑफ देम. Yes. Okay. I agree. Especially they have a new medium pacer. Sorry, I forgot their name. He's a highest. Shadley. Yeah. He is a highest wicket taker of the T20 World Cup. Yeah. So imagine playing that multinational level tournament and he is a highest wicket taker. It means he has done his basics right. और जब किसी प्लेयर का बेसिक सही होता है किसी टूर्नामेंट में जाने से पहले, that player perform. And that's the same thing USA did. So I think USA play more competitive cricket than any other team in the group. India obviously exceptional. They are playing some exceptional cricket. At this in point, T20 we don't cricket. even want to talk about Yeah, it. and yeah, It's honestly, that good. yeah, they are well good. Yeah. But having less experience, Yes. let's keep it that way. Having less experience at that big level at international cricket, That's good. USA perform way Yeah. too good. I agree. I am very proud of them, Team and they won USA, both the yeah. games with convincingly. They won both the games, so we are very proud of them. They are doing excellent, Very good. and we are with them. And Yeah. still, they have a chance to qualify. Yeah, and I think regardless, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रिकेट यूएसए के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा. Of course, it's a very big achievement. It's not any small that you are not the least among the five. You are Right. 50. You did 50-50, but the 50-50 where you are not successful, you did extremely well there. You show some competitive fights, and वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली है in terms of batting, bowling, fielding, भी बहुत everything. अच्छा Yeah. रहा. Yes, exactly. We don't see any silly misfields Yeah. or catch drops or anything. वो when the क्रिकेट USA कॉमन सेंस तक तो पहुँच चुकी है टीम. Exactly. I think they are doing very well Yeah. and they are in the right path as of now. Yes. तो अब अगला मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्लब क्रिकेट, राइट, आप 15 साल से ज़्यादा हो गया आपको खेलते हुए, तो जब आपने स्टार्ट किया था और अब आप क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस करते हो? See, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, I was very young. So as a young cricketer, you like to win all the games. But US में, see, let me tell you about some US structure also. US, there are more than in entire US, there are more than 200,000 players playing club cricket every weekends, especially in the summer weekends. There are more than 60,000 teams in US, and there are more than, I guess, 600 to 700 leagues play in the summer. Okay, so it's not that US is new to cricket. There are many players plays the cricket, but everyone have a different priority when they play cricket. See, some player play for the fun. They sacrifice their family time. They working throughout the week. Whatever the business jobs they are doing, and just to get fresh in the weekends or just to get out of those working stress, they prefer to play cricket. It means they want to play for a fun. Yeah. And there are cricketers who wants to play for win, and who want to perform, who wants to show his stats better, and then grow in the tournament, like play very well in the tournament and grow as a cricketer, and then play a very big tournament called MLC, majorly I think it's called minor league cricket, which USA introduced 2 years back, and बहुत सारे प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया. फॉरेन से भी प्लेयर्स आए, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गया, एंड दे आर ग्रोइंग, दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, एंड एवरी प्लेयर ग्रोज. सो क्या होता है ना कि लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है. प्लेयर्स का क्या प्रायोरिटी है आपकी प्रायोरिटी वीकेंड में सिर्फ फन के लिए खेलना है, या आपकी प्रायोरिटी जीतना है, या आपकी प्रायोरिटी जीतने के साथ साथ आपको यूएस क्रिकेट में भी आगे जाना है. सो यू गेट पीपल विद अ डिफरेंट माइंडसेट. और उन सबको एक टीम में खिलाना समटाइम इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज देन इट्स अ फिंगर पॉइंटिंग गेम्स कि यार तेरी वजह से हार गए या तेरी वजह से. मोर और लेस यू आर सेइंग एज इज अ फैक्टर, not in age, a way. not age. Age can be varies. I see people from 70 years, 60 years playing. There are Still some play for the win. Yeah, there are some Caribbean players. They play here in Georgia, in Connecticut, in different part of the United States. And I have seen people plays in their 50s, 40s, 30s, 20s. And पर ये एक चैलेंज होगा क्या कि माइंडसेट, क्योंकि एक यंग 20-25 साल के लड़के का और मैं जैसे आई मीन माई 35-40, तो उन दोनों को साथ में एक टीम में रखना और वो माइंडसेट का थोड़ा बहुत आपको मैनेज तो करना ही पड़ता होगा. That's where balance and that balance comes from the leadership. They need to understand what are player strengths, what are player weaknesses, what player are capable of, and what is your team goal. That is also equivalently important. आज तक कोई कहता है क्या कि भाई चलो ऐसे ही कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए.
राइट, तो वो टीम कभी फिर जीत नहीं पाती है, राइट. लेकिन अगर प्लेयर का ही एटीट्यूड ऐसा है कि भाई ठीक है कि यार मुझे सिर्फ फन करना है, आई वॉन्ट टू जस्ट स्टे हियर, एंजॉय विद द फ्रेंड्स, एनालाइज द गेम, कि भाई यू नो वो मज़ा लेना है कि भाई गेम में क्या हो रहा है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, थोड़े मज़े करते हैं, खाते पीते हैं. सो इट्स ऑल डिफरेंट. सो उन सब माइंड सेट को कैसे बैलेंस करना है, इट्स अप टू अ लीडरशिप. इट्स अ चैलेंज बट इट्स अप टू अ लीडरशिप. और उन सबको कैसे बैलेंस में लेके चलना है, बिकॉज मेकिंग अ टीम ऑफ 11, ओके, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन यूएस. क्योंकि देर, एज आई से, देर आर लॉट ऑफ टीम्स, लॉट ऑफ क्लब्स, लॉट ऑफ लीग्स आर अवेलेबल. If players you don't, if the player is see भाई I am not respected or I am not getting any enough opportunity, वो लोग दूसरे क्लब में मूव हो जाते हैं. वेर यार चलो भाई जहाँ पे priorities are different. So as it's a big challenge. I know because I manage the team. We manage the team. So it's a big challenge and manage all those peoples are not easy. हाँ, तो मैं उधर ही आना चाह रहा था. ग्लैडिएटर्स, राइट. तो अब मैं खुद ग्लैडिएटर्स में खेलता हूँ. मेघल भाई की कैप्टनशिप के अंदर मैं खेल रहा हूँ 1 साल. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर. तो मेघल भाई, आप ग्लैडिएटर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, एंड हाउ इट्स गोइंग सो फार, एंड challenges if you might want to share to run their club. So there is actual founder, his name is Akshay Gaur, and we used to play for we met through a common friend in Georgia, and we used to play for a club, and he felt like, you know, yaar, we are not getting the opportunities that we want, that, as I discussed earlier. So he said कि चलो एक club बनाते हैं. I was planning to go to India. It started in 2023, late 2023. I was planning to go to India. और फिर मैंने अक्षय has started the initiative, and उसने Facebook groups and वहाँ से एक प्लेयर्स को मिले, कुछ जहाँ पे हम प्रैक्टिस करने जाते हैं वहाँ से मिले, कुछ एक यहाँ पे अटलांटा क्रिकेट जोन करके वहाँ पे राशिद भाई है. राशिद भाई वॉज अ बैकबोन ऑफ अवर, एक्चुअली इज अ बैकबोन ऑफ अवर टीम. उन्होंने प्लेयर्स दिए. सो वो सबको करके अक्षय स्टार्टेड बिल्डिंग टीम, एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इंडिया एंड all the other players started joining. So 2023 we played for one normal tournament organized by Rashid Bhai, and we did very good there. And 2024 we expanded. We played Georgia Supreme League and Paramveer Sports Paramveer League in Georgia, which is a very big league. We played there. We did good at both the places. Then in 2025 we played in the ACL, Atlanta Cricket League, and Paramveer Cricket League. And this year in ACL again we are putting our two teams and one in the Paramveer. So slowly club is growing and we have 40 plus active members. And the biggest achievement for our club is like none of our club member left saying that, oh, I did not get an opportunity. Right? So we balance that, and that's why we are very proud that we are on the right track, and we still want to grow this club more and more, and everyone is welcome here. When it comes to running club cricket in USA, right? So what are the biggest challenges? So इसका आंसर मैं आपको दो पार्ट में देता हूँ. फर्स्ट चैलेंज इन यूएस एज अ क्रिकेट नेशन एंड देन रनिंग अ क्लब. सी यूएस में क्या है ना भाई, कि अगर आप इंडिया से हो या कोई भी साउथ एशियन कंट्री से हो या कोई भी क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन से हो, तो वहाँ सालों से क्रिकेट खेलते हैं. 80s 90s, some maybe started in 60s 50s. यहाँ पे इतना क्रिकेट का हिस्ट्री है नहीं. यहाँ पे क्रिकेट अगर देखा जाए तो मेजर लेवल पे लास्ट 10-15 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है. कि वेर आप जब सारी कॉलेजेस, लाइक देयर आर कॉलेजेस लाइक जॉर्जिया टेक, देयर आर कॉलेजेस इन न्यू जर्सी, देयर आर कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, एंड दोज टीम्स स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. एंड तभी कॉलेजेस में पता चला कि भाई क्रिकेट क्या है. एंड still people don't know what is exactly the cricket is, और क्रिकेट के रूल्स क्या है, क्रिकेट खेलते कैसे. they know it's something similar to baseball, but they don't know exactly cricket. So US cricket take a very good advantage of hosting 2024 India-Pakistan game in New York. And it blasted everyone in the news कि भाई every news channel was talking about it. There is in the New York financial capital of the world, and वहाँ पे क्रिकेट आया. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट. उन्होंने मैनहट्टन में वो सेट्स भी लगाया था कि क्रिकेट के बॉल कैसे डालते हैं. दी सेन डेल स्टेन, द गाय वाज टेलिंग डेल स्टेन हाउ टू बॉल. या इट वाज दैट टाइम ड्यूरिंग 2024 वर्ल्ड कप. या सो that is for the US. They don't play it historically. Maybe 25 years later down the line, US will be one of the
top 10 playing nations, and they will have a history that okay, we started in 2010 somewhere. And as a club, see, as a club में challenges ये है ना कि प्लेयर्स को मिलना और प्लेयर्स को मेंटेन करना इज अ बिग चैलेंज. अगर आज हम यहाँ पे हैं, वीकडेज में काम करते हैं, वी डोंट हैव helpers like we have it in India, right? So everything has been done by you and your partner or by yourself. और उसके फिर आपको वीकेंड्स में क्रिकेट खेलना होता है, तो यू हैव टू बैलेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई फैमिली लाइफ, आपके रिलेशंस में जो भी फेस्टिवल्स है या आपके जो भी इवेंट्स है, वो सबको मैनेज करके देन यू हैव टू टेक आउट अ टाइम टू प्ले क्रिकेट. और ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में या जो हमारे रेगुलर नेशंस में होता है, क्रिकेटिंग नेशंस में, कि आप यहाँ से 5 मिनट गए और आपको ग्राउंड मिल गया. हमारे यहाँ पे ग्राउंड होते 1 आवर, 1.5 आवर, कितना भी दूर हो, बट द पैशन फॉर द क्रिकेट इज स्टिल देयर. पीपल गोज देयर. सो देन इफ द पैशन इज देयर, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. ओके, परफॉर्मेंस स्किल्स सेकेंडरी है. किसी का परफॉर्मेंस ऊपर हो सकता है, स्किल सेट ऊपर हो सकती है, किसी का नीचे हो सकता है, कोई अभी भी क्रिकेट खेलना चाहता, बट पैशन शुड बी देयर. अगर पैशन है तो बाकी सब चीज़ें मैनेज हो सकती है. सो बिगेस्ट चैलेंज इज दोस फाइंडिंग दोस पैशनेट पीपल और फिर उनको मेंटेन करके रखना क्लब में. ये 2 बहुत बड़े चैलेंज है. आई एम क्यूरियस कि आप कुछ शेयर कर पाएँ कि भाई कितना मुश्किल होता है फाइनेंसेस और हाउ डू यू यूजुअली मैनेज इट. आप कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? See, finance is boss. There are passionate people for the cricket जो कि sponsors बनते हैं and they do sponsors. Right. If they see some potentials कि भाई यहाँ से भी मुझे business आ सकता है. There are some sponsors who are businessmen. तो वो देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ से कोई business आ सकता है क्या ये club से, कि अगर मैं इसे sponsorship दूँ तो. So we do that way also. कुछ होते हैं जो passionate होते हैं सिर्फ क्रिकेट के लिए. Right. कि वो आपकी टीम को चाहते हैं, दे डू द स्पॉन्सरशिप फॉर योर क्लब. सो और देन आफ्टर वॉट एवर योर क्लब एक्सपेंसेस आर, फिर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ अमंग द प्लेयर्स, सो प्लेयर्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. सो इट्स गो इन हैंड स्पॉन्सर्स प्लस प्लेयर्स. सो इफ यू हैव गुड स्पॉन्सर्स, यू हैव गुड स्पॉन्सर मनी, इट्स अ लेस बर्डन ऑन ऑल द प्लेयर्स. बट इफ यू हैव लिमिटेड स्पॉन्सर्स और नो स्पॉन्सर्स, देन एवरी मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स. बट हम लोग एक चीज़ देखी है कि अगर आपका अकाउंटिंग बहुत क्लियर होता है तो पीपल डू कॉन्ट्रीब्यूट्स इवन. और अगर आपका इंटेंट सही होता है तो पीपल डू गिव स्पॉन्सरशिप. सो इन US द क्लब इट्स गो वेरी सिमिलर वे, हैंड इन हैंड, स्पॉन्सर्स एंड अ प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ यू गेटिंग 100% स्पॉन्सरशिप क्लब, इट्स अ गोल्ड माइन. हाँ, तो यही मेरा फॉलोअप था कि आप आई थिंक 2 या 3 साल से क्लब चला रहे हैं, राइट? डू यू थिंक इट गेट्स ईजियर आफ्टर अ वाइल, और आप सेम ही चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं, या डू यू थिंक देयर इज एन इम्प्रूवमेंट? यार फाइनेंस के चैलेंजेस तो कब नहीं होते हैं. यू टॉक टू इवन द बिग बोर्ड्स हैव द फाइनेंसिस चैलेंजेस, राइट? चाहे वो क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन हो, उनको भी होते हैं. तो वी आर द स्मॉल क्लब, सो फाइनेंस चैलेंजेस तो ऑलवेज होते हैं. बट द गुड थिंग इज हमारी जो टीम है, अनलेस यू आर BCCI. No, but they are the elephants of the finance world. Yes. But अगर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमारी टीम में भी कुछ है, अक्षय है, जोएल है, मैं हूँ, कार्तिक भाई है, एंड देयर आर मेनी मोर्स. सो जब कभी भी क्लब में ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन होता है, वी ऑल स्टेप अप कि भाई लेट्स नॉट पुट टू मच बर्डन ऑन द अदर प्लेयर्स, बिकॉज सी एवरीबडी बैलेंस द फाइनेंशियल्स एट देयर होम एंड एवरीवेयर, राइट? तो कोई आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि बिफोर आई फॉरगेट कि कुछ लोगों का, मैंने क्योंकि मैं भी खेल रहा हूँ, राइट, 1 साल, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है क्लब से, कि कभी भी उनको लाइक देयर आर सम पीपल आउट ऑफ दे एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, क्योंकि वो 1 साल 2 साल से आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. तो whenever there is a trouble, I've seen like a lot of people just step up, which I think you agree as well. So I completely 100% agree. There is not a lot of, majority of the club members are, or almost every club member is so much associated with the club, emotionally attached with the club, कि जो नए आए हैं, इवन दे आर नाउ इमोशनली अटैच. और उसका क्या होता है ना, जब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है ना, इट्स ईजी कि भाई अगर मैं बिहाइंड द डोर सारी चीज़ें करूंगा फाइनेंस की, देन यू फाइंड समबडी विल माइट फाइंड फिशी. बट इफ यू हैव लाइक ओपन डोर, जिसको जो भी देखना है, फाइनेंसिस देखना है, या तो इट्स ईजी फॉर एवरीवन. एंड जब कभी भी हमारे क्लब में ट्रबल होता है, everyone step up. क्रिकेट के फ्यूचर के लिए USA में, राइट, स्टिल इट इज कंसिडर्ड
mostly immigrant community sport, right? You don't Correct. see like Americans watching this game or playing this game. तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए क्या 2-3 चीज़ें रहेंगी इम्पोर्टेंट अगले 10-15 साल में टीम यूएसए के लिए? से किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आपको बड़े लेवल पे करना होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. सो ग्राउंड लेवल मीन्स इनके स्कूल क्रिकेट में, लाइक स्कूल्स में यू विल सी सॉकर लीग, बेसबॉल लीग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लीग्स, बट यू विल नॉट सी क्रिकेट लीग. क्रिकेट लीग जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ करती है क्रिकेट लीग्स, एंड वहाँ पे भी मेजोरिटी हमारे साउथ एशियंस प्लेयर्स होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया से या अफ्रीका या इंग्लैंड से आए हुए प्लेयर्स होते हैं जो कि बेसिकली क्रिकेट खेल रहे हैं. क्रिकेट खेल रहे हैं, या सो देयर इज दिस कि भाई पहले तो उन्हें वो ग्राउंड लेवल पे इंट्रोड्यूस करना होगा कि जब बच्चा बचपन से सीखेगा. आप कोई भी क्रिकेटिंग नेशंस ले लो, उसमें अगर आप देखोगे तो बचपन से ही वो क्रिकेट खेल रहा होगा. आप उसकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री सुनोगे तो किसी भी कंट्रीज़ के, तो सेम वे यहाँ पे भी अगर आपको क्रिकेट में एक अच्छा इवेंट बनाना है तो अच्छी टीम बनानी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है जो कि फ्यूचर में आईसीसी ट्रॉफीज जीत सके, तो आपको स्कूल लेवल से ही शुरू करना होगा. ओके, एंड तो उसके लिए पहले ये बहुत बड़ा काम है. उसमें स्टेट, काउंटीज़, फिर उस हिसाब से क्रिकेटिंग फील्ड्स बनानी होगी. जैसे अगर आप यहाँ पे नेशनल पार्क्स या यहाँ का कोई भी लोकल पार्क्स में जाओगे, यू विल फाइंड अ बेसबॉल फील्ड, you will find a soccer field, but it is hard to find a cricket field. It's practically impossible, right? So यहाँ पे counties, states, country ऐसे सबको एक साथ मिलके काम करना होगा, और ICC has to step up as jump well. in, and US Cricket Board has to jump in, and they have to make a plan with the US government. So एक ये बड़ा चैलेंज है कि ग्राउंड लेवल पे आपको करना है. सेकेंड चैलेंज मैं कहूँगा पे रोल्स, कि भाई मनी, या अगर आप यहाँ की ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स देखोगे विच इज़ NFL, MLB, NHL, उसमें प्लेयर्स को इतना पैसा मिलता है, विच इज़ गुड इनफ मनी, स्पेशली NFL. सो या NFL इज़ टॉप रेटेड लीग. अगर तो होता क्या है ना कि बिकॉज देर आर टू मच मनी एंड टू मच फेम इन US इन्वॉल्व, तो बच्चा बचपन से ही वो NFL का या वही स्पोर्ट्स पकड़ता है, राइट? अगर आप देखोगे तो एवरी लाइक बास्केटबॉल हो गया, या हॉकी हो गया, लाइक आइस हॉकी हो गया, या फिर बेसबॉल हो गया, या NFL हो गया, तो आप देखोगे घर में वो स्पोर्ट्स चलती ही रहती है. डैड देख रहे होंगे, मॉम्स देख रही होंगी, ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे होंगे. सो क्या होता है कि वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और वो प्लेयर, बच्चे को भी वही प्लेयर बनना होता है, राइट? अगर मेरा बेटा आज बाहर जाके आउटडोर खेलेगा, सो इवन ही डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट. He wants to play the sports that everyone is playing, right? So it's challenging for me also to convince him to play cricket. But ये एक बड़ा चैलेंज है. So these two are the major challenges, and then the facilities and infrastructures. So यहाँ पे भी definitely it needed an improvements. Ground की qualities and the way the selection process, it has to be little transparent. But these three are the major challenges: base level cricket, finances, and the infrastructure. All right. Thanks a lot. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगली बार क्रिकेट की बात होगी आपको जरूर याद करेंगे. थैंक यू.